News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना न भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Hello, good afternoon and welcome to Money Matters, our daily show on all things to do with personal finance. You are tuned into Money Matters on the official All India Radio News YouTube channel. This is an interactive show where you can also participate. You can do that simply by typing your comments or questions or suggestions in the live chat section. Or you can send us an email on moneymatters.air@gmail.com. We announce the topic of the show one day in advance so that you can send in your questions in advance. So tomorrow's topic will be Investment in Equity Linked Savings Scheme or ELSS. But our topic for today is Basics of Investing Part 3. That's right, we started the series on the basics of investing, stock investing rather, with our stock expert Rajiv Nagpal on the 2nd of January this year. Today we'll be bringing you the third part. I'm V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है शेयरों में निवेश के बुनियादी तथ्य भाग 3। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनू। राजीव, आप पहले ही शेयरों में निवेश के बुनियादी तथ्य से जुड़े 2 कार्यक्रम कर चुके हैं हमारे श्रोताओं के लिए, जिसमें आपने जो बेसिक्स हमें काफी डिटेल में बताया कि कैसे इन्वेस्टिंग एक बिजनेस में होता है, एक स्टॉक प्राइस में नहीं होता है, और कैसे एक चयन करें कंपनी का, उसके टैक्सेशन पे आउट्स देखें, डिविडेंड पे आउट्स देखें। अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें और आगे चर्चा को बढ़ाना चाहें। Let's do a more detailed recap, Rajiv, before we go. The first fundamental that you had said in the first program is about you're taking ownership in a business. You're not just buying shares. And you explained the difference between price versus value of a share. And somebody had asked what are the excellent sources of information. You mentioned NSE India and BSE India are good stock. And you said that don't take courses which will promise to make you an expert in 2 or 3 weeks. Those are generally fraudulent courses and you will have to do it for the long haul. It takes time to learn about stocks. That's what you had mentioned. And one important thing that you had mentioned was never use leverage to invest in shares. Yes. That you should never take a loan to invest in shares. In the second episode, you had mentioned on how to find the quality of management, because we talk about quality of management. You said check the tax payment and dividend payment because those are actual cash flows that go out of the company. Their balance sheets can be fudged, should not be, but can be. But these are ways to know that quality of management is actually there. And you had also mentioned things like people normally ask, koi sasta stock bataiye. Penny stocks, and you had said avoid penny stocks. And that's what you call the high PE myth, is what you had called it. And so the biggest risk you mentioned is quality of management. So what would you like to focus on this particular third session of basics of stocks investing? Well, Ravi, let me start with that, continuation of bit of on quality of management. See, there is one way to figure out the quality of management is whether they are paying taxation or not. There is a slight difference between quality of management and competence of management. Okay. So now what happens is that if a management has quality in the sense that first thing is whether they know how to make money, I mean whether they are able to handle challenges which every business brings. I mean it's not every business has its own set of challenges. How competent the management is to face those challenges and to bring that company out of if there is a problem or to grow in a time. So let's take an example. There were many NBFC companies which went into problem in October 2018. Now at this point of time, some of them are probably would be soon going to IBC. Others, what they have done is they have a competent management. The market share which was left by them is being picked up by the competent management and the nice big companies. So you have to figure out, one is quality, also at the same time the competence of the management. The competence of the management probably can be seen from whether they are getting the market share in the business where they are doing.
and whether that market share is being gained at the at the cost of losing margins, or they are able to maintain margin and still grow the business. Because what happens is, a lot of time companies think, okay, we have to grow our top line, so they kind of forget that the basic end objective is that you have to also maintain bottom line has to go, margins have to be there. तो ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत यूज होता है किसी भी कंपनी के जब रिजल्ट्स भी आते हैं, तो आप हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा विस्तार में एक्सप्लेन करेंगे कि टॉप लाइन क्या होता है किसी कंपनी के संदर्भ में, और बॉटम लाइन क्या होता है? टॉप लाइन कहा जाता है एक्चुअली जो पहला आइटम जब कंपनी एक अपनी अर्निंग्स अनाउंस करती है, जो सबसे ऊपर पहला जो वो अनाउंस करती है वो होती है सेल्स, इसीलिए उसे कहा जाता है टॉप लाइन। और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वो जो होता है वो आता है सबसे नीचे, तो उसे कहा जाता है बॉटम लाइन। सारे खर्चे निकाल के बीच में टॉप और बॉटम लाइन के बीच में एक्सपेंसेस, मार्जिन, इंटरेस्ट कितना गया, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, सो लास्ट में शुद्ध मुनाफा कितना कंपनी ने कमाया, क्योंकि वो लास्ट में आता है, बॉटम में आता है, तो उसे बॉटम लाइन कहते हैं। So you could actually have a huge top line, but probably a negative. That's what we call it, in the red kind of bottom line. Yes, and because your expenses are more, that is why. Now, after this competence and quality of management, the bigger question comes is when, in the, which most of people I have seen facing them is, when do you buy a particular stock? In fact, there is a very common thing that they say is buy low and sell high. It sounds so easy to do, but I remember there was a private bank almost 1.5 years ago which had a huge fall. It's still falling, but people said it's a good time to buy then. But then we have all been seeing what's happening to the stock price. So how do you know whether it's actually a buy low? Low क्या है? कितना लो या कितना हाई? So okay, now जैसे टाइमिंग, हम कई बार ये सुनते हैं कि टाइम करना है मार्केट को, क्या ये एक अच्छी पॉलिसी है? मैं एक सवाल लेता हूं। जैसे रवि ने कहा कि लो क्या है, जो रवि ने एग्जांपल दिया, अगर मैं उसको लूं तो देखिए, वो पहली बात, जो पहला पैरामीटर था कि कंपनी का बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनके वो बैंकिंग क्षेत्र में थे, उनके इश्यूज थे। बैंक का बेसिक काम है पैसा लेंड करना और पैसा रिकवर वापस करना। अब आपने अगर लेंडी ऐसे लोगों को करा जिनसे आपको उम्मीद, आपको मालूम है लेंड करते हुए कि वो बिजनेस ही शेकी है, जिनको आप लेंड कर रहे हैं उन बिजनेस के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो जब लेंड, तो गलतियां तो वहीं हो गई जो उनको लोन देने में हुई थी। तो दैट काइंड ऑफ अ स्टॉक, दैट काइंड ऑफ मेंटल बेंचमार्किंग कि चीज 400 रुपए की थी, आज 200 रुपए के लिए तो इसलिए अच्छी हो गई, नहीं, वो 400 रुपए गलत भाव था और 200 भी गलत है। अब वो 200 में से एक डिजिट और कम हो सकती है, और वो हुई उस केस में। तो अगर आप देखें तो वो, और इनफैक्ट यहीं पे एक और मल्टीनेशनल थी जिसके ऊपर कुछ नूडल्स से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम आई थी, और वहां उस पर वाकई में फॉल आया था, मगर वो अब वापस रिकवर कर गया। वो ऑल टाइम हाई पे है ऑलमोस्ट अब। तो ये कैसे पता चले कि ये वक्ती तौर पे गिरा है या ये हमेशा के लिए गिर गया है? नहीं, ये देखिए, द क्वेश्चन वो है कि अंडरलाइंग बिजनेस क्या है। जैसे कि मैंने कहा, अब उसमें जो बिजनेस था, उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट था, एज अ बैंक आपको लेंड ठीक लोगों को करना चाहिए, आपने लेंड ही रिस्की लोगों को करा तो आपके एनपीए बढ़ने थे। दूसरा, जो दूसरा आपने एग्जाम्पल लिया, उस केस में एक प्रॉब्लम थी, एक इशू आया, पर जो अगर आप उसका बेसिक प्रोडक्ट देखेंगे वो इतना स्ट्रांग था कि वो थोड़े दिनों बाद फिर वापसी से वो शुरू हो गया। तो वो एक अलग चीज है। वो आपका जो क्वेश्चन है कि वो वक्ती शॉर्ट टर्म है, वो उससे मालूम चलता है कि प्रॉब्लम है कैसी। वो मालूम चलता है कि मैनेजमेंट को देख के कि प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए कि अगर मान लो जैसे कि बैंक के केस में था कि एक के बाद एक निकल के आ रहा था, इन्होंने इसको भी लोन दिया है, इन्होंने इसको भी लोन दिया है, तो वो एक परमानेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके बेसिक बिजनेस मॉडल में ही इशू था कि आपने रिस्की लोन दिए थे। वेयर एज दूसरी कंपनी केस में बेसिक बिजनेस प्रॉब्लम नहीं था, वो एक वन ऑफ इशू था, और वो वन ऑफ इशू खत्म हो के उन्होंने अपना स्टॉक डिस्ट्रॉय करा, दूसरा लाए, जो भी चीज उनको एज पर रेगुलेशन करनी थी वो चीजें टेक कर करी, दोबारा वापसी से वो सेल हो गई। आप अब सुनिए, आपके क्वेश्चन पे आते हुए कि जो टाइमिंग जो करते हैं, पहली बार टाइमिंग करना बहुत मुश्किल काम है। टाइमिंग देखिए, आप पैसा लगा किसके लिए हैं, एक चीज पहले डिसाइड कर लिए, आप पैसा लगा रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा सेविंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या पैसा बाजार से एज अ बिजनेस प्रोफेशन कमाने आए हैं। अगर आप प्रोफेशनल के लिए एज अ इनकम जनरेशन के लिए आए हैं, तो आप समझिए कि आपको टाइमिंग, ट्रेडर को टाइमिंग करता है, इन्वेस्टर को टाइमिंग की उतनी जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टर का फोकस होना चाहिए बिजनेस करना,
और टाइमिंग करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि किस टाइम क्या ग्लोबली कुछ डेवलप हो जाए। आप कितना भी अच्छा देख लें, कुछ ग्लोबली कुछ, पिछले हफ्ते ईरान और यूएस का इशू हो गया, तो आप जितना मर्जी अच्छा वो कर लें तो उसके वो टाइमिंग करने के चक्कर में आप कर नहीं सकते, बिकॉज आप ग्लोबल इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइमिंग आप अपने बिजनेस में करेंगे, टाइमिंग करने का एक ही तरीका है, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को जितना आप लंबा कर सकते हैं उतना करिए ना। वो तभी होता है जिसमें एज अ पहला भी हम बात कर चुके हैं, पहला कि आप लिवरेज ना करें, दूसरा अब आप अपने पैसे से लगाने से पहले कुछ समय लगाएं। लोग ज्यादातर शेयर खरीदते हैं, लोग मेरे को इसने, मेरे दोस्त ने कहा था, मेरे को यहां से मालूम चला, मेरे फ्रेंडली दो नेबर ने बता दिया, मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने बता दिया, ठीक है बताया किसी ने भी, पैसा आपका लग रहा है तो आप समय लगाइए, जाइए देखिए कंपनी काम क्या करती है, वो कंपनी काम जो करती है उसको समझने की कोशिश करिए वो क्या है। तो ऐसे में कोई थंब रूल है कि जो आप पैसा लगा रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत आप अगर उसका लॉस भी हो जाए तो आप उसे बियर कर सकें, ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा वो ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, ज्यादातर के स्टॉप लॉस होता है, जैसे उनके भाई आपने लगाया ये स्टॉप लॉस लगाया। जहां तक एक और चीज जो मैं आऊंगा कि कब नहीं करना चाहिए। अच्छा, कब नहीं करना चाहिए। जैसे मार्केट में एक प्रिंसिपल होता है, यू बाय फियर एंड यू सेल ग्रीड। जब बाजार बिल्कुल फियरफुल हो, जैसे अगर आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर या इस टाइम पे सब बुरी खबरें आ रही थी, आपको जीडीपी के नंबर खराब, आईआईपी नंबर खराब, एक्स खराब, वाई खराब, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ ऐसे ही आ रहा था। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव देखेंगे वो भाव और आज के भावों में देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 20 से 22% ऊपर है इन लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो अब आप कहेंगे ग्रीड आ गया है या अब आप कहेंगे? नहीं, अभी ग्रीड नहीं आया। ग्रीड था 2017 का एंड, जब आप देखते थे कि अननोन कंपनीज जिनके भाव, जो कंपनी करती क्या उनका नहीं पता, उनके अपर सर्किट फिल्टर लगते थे, वो 5-5% बढ़ते थे। पेनी स्टॉक, 5 रुपये वाला स्टॉक मालूम चला कि बहुत ऊपर बढ़ गया, फिर उसके मैनेजमेंट आके अपनी खबर या तो टीवी में चलवाते थे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, या पेपर में ऐसी स्टोरीज प्लांट कराते थे कि हमारा एक्सपेंशन है, हमारा ये है, हमारा वो है, मतलब एक कंपनी। इनफैक्ट आपने लास्ट प्रोग्राम में 2000 में आईटी स्टॉक्स के कुछ की मिसाल दी थी जो अब गायब भी हो गए हैं, जो उस वक्त पे 50-50, 60-60 पीई चलते थे। तो वो एकदम ऑल ऑफ सडन जो ओवर एक्सेसिव बुल फेस का जो बबल के साइन होते हैं कि कोई कंपनी क्या करती है, कुछ नहीं करती, 5 साल से कुछ नहीं कर रही थी, 5 साल पहले उनकी बैलेंस शीट में कुछ था, कोई सेल नहीं थी, फिर वो आकर अनाउंस कर देती है, ऑल ऑफ सडन ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन ये होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया आपके बिजनेस में कि आपने कौन सा कुछ नया ऐसा इजाद कर लिया कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड एकदम बढ़ जाएगी। इनफैक्ट राजीव, इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि कई स्टॉक्स है वो 52 वीक हाईज पर होते हैं, लेकिन कई स्टॉक उसी समय 52 वीक लोज पर होते हैं। तो ये बेसिक क्या डिफरेंस है कि कुछ सेक्टर्स के लिए कुछ समय अच्छा होता है और कुछ सेक्टर्स के लिए वही समय खराब होता है? नहीं, देखिए मैं बहुत इतना तो खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कई सेक्टर हैं जिनका मान देखिए जिसमें मेटल एज रॉ मटेरियल जा रहा है और मेटल प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे तो उस क्षेत्र में इशू आ जाएगा, लेकिन जो उसका जिसका वो रॉ मटेरियल है वो उसमें कितनी वैल्यू ऐड करता है, उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, वो डिसाइड करेगा कि उसका कितना प्रेशर में आता है जब मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं। तो वो सारी स्पेसिफिक चीज हो जाती है। तो बाय करने का पहला असूल कि जब कब नहीं बाय करना, जब एज जैसे बाजार में बहुत ज्यादा यूफोरिया हो। दूसरा एक और जो कई बार लोग गलती करके, मैंने देखा है कि गलती कर बैठते हैं, किसी पे कहीं से कुछ पैसा आया, किसी को कुछ बेचा 4-5-6 लाख जो भी आपके पास आया, किसी वो बाय करने का टाइम डिसाइड करते भाई मेरे पास आज कुछ दिन के लिए पैसा आया है, अब बताओ मैं कौन सा स्टॉक लूं। आप स्टॉक, आपके पास पैसा आ गया इसलिए थोड़ा नहीं स्टॉक लेंगे, आप लेंगे स्टॉक वैल्यूएशन चीप है या नहीं है, मार्केट में इक्विटी एसेट क्लास अच्छा करेगा या नहीं करेगा, इकोनॉमी अच्छा करेगी या नहीं करेगी। आपके पास पैसा आने का उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए ये बाजार खराब, मतलब न्यूज खराब है, फंडामेंटल ऐसा बोले जा एक्सेसिव हो चुका है, वैल्यूएशन बहुत चीप है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तब वो लेने का टाइम होता है। किसी के पास पैसा आ गया वो कभी रीजन नहीं हो सकता कि किसी के पास, कई बार ऐसा होता है लोगों ने बोले मैंने मकान बेचा है, मेरे पास कुछ 6 महीने से साल 8 महीने के लिए कोई एफडी में चोर हुई है, कुछ भी हुआ, पैसा आ गया तो मैं तब ले लूं। मैंने कई बार लोगों से प्रश्न आते हैं कि मैं तब ले लूं, नहीं, वो रीजन नहीं हो सकता आपके पास पैसा आ गया। स्टॉक को लेने का रीजन, अगर आप मार्केट में आ रहे हैं
फॉर इन एंड दैट टू अगर लमसम इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। पहली बात तो लमसम करना नहीं चाहिए इन्वेस्ट, क्योंकि अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिस्क बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। वो लमसम इन्वेस्ट करना भी जो है वो एक एज कम्पेयर टू SIP एक रिस्की वेंचर है। पर चलिए मान लीजिए आप लमसम भी करना चाहते हैं, तो मेरे पास पैसा आ गया इसलिए मेरे को स्टॉक लेना है, वो रीजन नहीं हो सकता। We will continue this discussion about the basics of stock investing with Rajiv, but after a short break. Welcome back after the break. We'd like to tell you that the topic for tomorrow's Money Matters is investment in equity-linked savings scheme or ELSS. So if you have queries about ELSS, do email them to us at moneymatters.air@gmail.com. Or if you want to ask questions live, then you will have to tune in at 4:05 p.m. tomorrow and ask your questions before 4:30. So we spoke a lot about buy low. Now there is the other part of that, which is sell high. So how do you decide that it is high or high enough? For example, I remember some 22 years ago, I bought a very good PSU stock for almost 2 rupees, and when it went 6 times, I sold it because I thought 6 times is great. Then it eventually went up to 20 times. So when do you know that okay, this is high? Now that will bring us to the valuation parameter. यहाँ पे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि स्टॉक वैल्यूएशन, आप कई बार वर्ड यूज कर रहे हैं और हम करते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए अगर बताएं कि स्टॉक वैल्यूएशन एग्जैक्टली क्या होता है और चीप स्टॉक वैल्यूएशन का क्या मतलब है, जो आपने कहा कि बाय करने के लिए स्टॉक वैल्यूएशन चीप होनी चाहिए। चीप नहीं, मैंने कहा वैल्यूएशन चीप। देखिए अगर चीप है तो फिर जो वैल्यू है आपने एक वैल्यू कंपनी कर सकते हैं, और मॉडल के कई मॉडल हैं जो जिसके हिसाब से वैल्यू करते हैं। कोई DCF लगाता है, कोई प्राइस अर्निंग यूज करता है, कोई प्राइस टू बुक यूज करता है, कोई प्राइस टू सेल यूज करता है। वो देख लेता है कि ये बिजनेस ऑन एन एवरेज इसमें कितनी वैल्यूएशन इसको मिली है ओवर द ईयर, या इस बिजनेस में कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। जो बिजनेसेस जिनमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी ज्यादा होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा होता है, उनकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है, क्योंकि वो कहा जाता है कि आपके पैसे उतने टाइम में आपको रिटर्न आ जाएगी। तो वो एक वो होता है कि एक आम इन्वेस्टर के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। ये देखिए, मैं नहीं अवेलेबल होते। सी डेटा की कमी नहीं है, डेटा के इंटरप्रिटेशन का एक स्किल सेट है। अवेलेबल तो सारा कुछ है, अगर आप बैलेंस शीट तो सबके लिए अवेलेबल है, पर क्वेश्चन इसके डेटा को इंटरप्रेट करने की जो एबिलिटी है, डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो है आपको एक स्किल सेट चाहिए, एंड इट इज नॉट इजी। लग सकता है तो मैं, और देखिए जहां तक वैल्यूएशन की बात है, वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव। अ ट्रेड टेक्स प्लेस व्हेन वन पर्सन इज रॉन्ग, क्योंकि एक आदमी जो बेच रहा है या तो वो गलत होगा या जो खरीदेगा वो गलत होगा। तो वैल्यूएशन के लिए मान लीजिए अगर आप IT कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, उसके अलग पैरामीटर्स हैं, क्योंकि उसमें डेट नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर को वैल्यू करेंगे तो उसके अलग पैरामीटर, उसमें डेट होता है, लेकिन उसमें कैश फ्लो, अगर एक बार मान लीजिए कि उन्होंने एसेट बनाया और उस एसेट की वैल्यू 20 साल तक, मान लीजिए एयरपोर्ट बनाया, 20 साल तक दूसरा एयरपोर्ट आना नहीं है, कैश फ्लोज अलग आएंगे, एन्युटी बिजनेस है। इंश्योरेंस कंपनी को वैल्यू करेंगे तो उसका एक अपना तरीका है उसको वैल्यू करने का, बिकॉज अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। तो आप हर बिजनेस को अलग अलग तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स पे वैल्यू करते हैं। जहां अब कमिंग बैक टू व्हाट रवि वाज आस्किंग कि व्हेन डू यू सेल, द क्वेश्चन इज दैट वन, एक और चीज है, उसमें दो मैं हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक, इफ इट्स अ गुड बिजनेस, यू गॉट एट अ राइट प्राइस and the business is doing well and you don't need money, there is no reason for you to sell it. I mean, if you bought, let's say take the case of Hindustan Unilever, I mean the stock actually did not perform for 10 years between 2001 and 2008. It was stagnant. Yeah, it was stagnant. Yeah, so look at it. But then when the when that catch up happened, it made all the time which it lost, it recovered it back in terms of returns. So if you are investing in a company, see, sometimes exactly the same thing which you said, your personal experience, that you bought a stock at X price, it went up 6 times, you said, it has went up 6 times, then should I sell it? I mean, that can, and then you realize that you sold it too early. So the fact is that your buying and your selling was based on the fact that not that the business was now time to sell, it was valuation, it was a high valuation, or business was facing a problem.
See, when do you sell a stock? When do you exit out the company? If there is a likelihood that the sector is going to come into trouble, earnings are going to come down, and or if you think the management quality has down, some management changes happen, the other guy who has come will not be able to make the business work so hard. So, आपके लेने से वो भाव डबल हो गया. बुल रन में 2013 से लेकर 2017 एंड तक ऐसे स्टॉक हैं जो 100 गुना हुए इन 5 years. पर लोगों ने, किसी ने 100 का लिया और 200 का बेच दिया क्योंकि मेरा पास तो डबल हो गया. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मेरा पास तो डबल हो गया, अब मैं डबल पे बेचूंगा. या कई लोग उसको बेंचमार्क बना लेते हैं कि भाई मेरा जब तक डबल नहीं होगा मैं तब तक नहीं बेचूंगा. आपने जिस बैंक के भी अभी जिसका जिक्र करा था, मेरे पास कई लोग ऐसे होते ये मैं 100 रुपए पे बेचूंगा. अरे आपको कैसे मालूम है 100 रुपए हो जाएगा? हाँ, तो that is what has you have to round figure पे जाके अटकना. When you sell actually is either जब वो बिजनेस में कुछ इशू आने की आशंका हो, जैसे कि टेलीकॉम में ये है कि डिसरप्शन का हो जाएगा, या कुछ कंपनीज हैं जो ऑटो एंसिलरीज हैं जो कि उन कंपनी को सप्लाई करते हैं जो इंटरनल कंबस्टन इंजन पे जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. और दूसरा एक बात और होती है कि जब आप बेचें, आप बिजनेस में कुछ इशू हो तब बेचें. अपने पर्सनल उसके लिए, या तो आपको कोई जरूरत है, आपके पास एसेट है, आपने सेव करा था, आपको जरूरत है तो बेच दीजिए. अगर आपको जरूरत नहीं है, आप क्योंकि नॉर्मली मिनिमम टाइम होराइजन क्या देखिए, मिनिमम देयर इज ऑलवेज दिस फियर व्हाट दे कॉल एज द अभिमन्यु सिंड्रोम. जस्ट टू टेक ऑफ फ्रॉम वेयर सोनू सेड, दैट इज यू हैव गॉटन इनटू इट बट एग्जैक्टली you fear you might not able to get out of it. So you are always looking at that cutoff, okay, 6 times, 7 times. See again, like buying principle or valuation principle are not same for every company. The selling principle cannot be same. So if I am in a business, give me an example. Let's take an example of LGFC. Profit targets right at the beginning. No, that is for the traders. That is for a trader, not for the investor. Not for investor. So कोई time bound targets भी वर्क कर सकते हैं? 3 साल बाद निकल जाएं. 5 नहीं, पता नहीं. अगर मान लीजिए आपने 2017 में लिया, अब तो 2020 आने वाला है, 2017 के एंड में लिया था, 2 साल तो आपके निकल गए, पर अगर आप देखें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तो ये टाइम बाउंड जो है, आई डोंट थिंक सो. 3 ईयर नॉर्मली एक नॉर्म बन गया है, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सूट करता था. ELSS की टैक्सेशन की वजह से ये होता था कि चलो इतने बाद बेच लेना, टैक्स फ्री हो जाएगा. ये सारे 5 साल 10 साल जब तक बिजनेस ग्रो कर रहा है तब तक उसमें रखने. बिजनेस अच्छा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसे रखिए. दूसरा एक जो सेलिंग के टाइम आता है, सेलिंग के टाइम पे आप ये मान के चलिए कि लोगों को ये हो जाता है कि मेरे बेचने के बाद बढ़ गया. अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको बिजनेस में प्रॉब्लम तब पता चली जब शेयर 10% घट गया या 20% घट गया अपने रिसेंट हाई से, उसके बाद भी बेच दीजिए. ये नहीं मैं इतने वापस आ जाएगा तभी मैं बेचूंगा, दैट कैन नॉट बी द रीजन फॉर सेलिंग. बिकॉज व्हाट हैपेंस, एक इन्वेस्टिंग में एक और प्रिंसिपल है कि आपकी जो कैपिटल है आपको उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी यस, बिकॉज कैपिटल रहेगी तभी कैपिटल गेन आएगा. सो बेसिकली अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी. तो रिस्क को आपको मैनेज करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना और मैनेज करना. एलिमिनेट तो आप कर ही नहीं सकते. अगर आप रिस्क एलिमिनेट कर देंगे तो रिटर्न भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी. एफडी में रिस्क नहीं होता है और इसलिए रिटर्न भी नहीं होती है. And one last thing that people talk about, don't put all your eggs in one basket. And quickly, yes. So how wide should this diversification be? 10 stocks, 20 stocks? Well, if you're going through mutual fund route, the best is you go through mutual fund route, so automatically एक diversification आ गया. But in case you are an investor who prefers to invest directly, then don't increase the portfolio by any chance in more than 10 stock. By no stretch of imagination your exposure should go. Otherwise होगा क्या, एक मेटल स्टॉक होगा, एक उसका कंजम्पशन स्टॉक होगा, एक ऑयल प्रोड्यूसर होगा, एक ऑयल को यूज करने वाला होगा. सो फाइनली जो होगा वो आप टाइम करते रह जाएंगे किसमें क्या है. पर इफ यू आर इन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन मार्केट्स, प्लीज spend your time before you invest your money. We'll continue picking Rajiv's brains on this topic in future episodes as well. Once again, the topic for tomorrow's show is investment in equity-linked savings scheme or ELSS. Do send in your questions on this topic in advance at moneymatters.air@gmail.com. Thank you, Rajiv. Thank you, Sonu. And that's a wrap on this edition of Money Matters. Namaskar.